That to the topic is the standards, food standards. Okay, so if any manufacturer is engaged in the business of food operation or food business, they are manufacturing the food and they intended to sell the product either in domestic market or international market. So they must have to follow some standards. Okay, if it is means selling into the domestic market, then they have to follow the national standards. If they are intended to sell their product into the international market, then they must have to follow the international standards. Now coming to the standards, who who is developing standard? Okay, and what is the standards? Standard basically is what is a kind of guidelines. Okay, guidelines that some organizations are formulating. They must have to follow the guidelines if they are producing some kind of product. Say for example, fish and fishery product. So in fish and fishery products, different kinds of fish and fishery products is there. Ready to eat product is there, ready to cook product is there, canned product is there, value added fishery product is there, frozen products is there. So a lot of product is there, and each and every product is having their own standards. They are having their own guidelines. They must have to follow the this food business operator. They must have to follow. Okay, so this standard, this food standards, it has been introduced on national as well as on international basis. Why? To protect the consumer health and to ensure fair practice of fair practice in food trade. First objective of this standard is to protect the consumer health. Why? Because if any company or any industry, they are producing their food and they are selling into the market, so definitely some of the customer they will buy that product. So if they are buying the product and consuming that product, so that product it should not have any adverse health effect on the consumer. So that is the aim of this standard. First, to protect the consumer health and to ensure fair practice trade. That means अगर हम फूड को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और बहुत सारा मीन्स ये है कंपनी है जो सेम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो दोनों के बीच में कोई या दोनों के बीच में या आपस में कोई डिस्प्यूट नहीं हो जाए, जिसके लिए हम ये स्टैंडर्ड्स डेवलप करते हैं. दैट्स व्हाई वी आर डेवलपिंग द स्टैंडर्ड्स एंड दे मस्ट हैव टू फॉलो द वन स्टैंडर्ड. सपोज कैन प्रोडक्ट है, कैन प्रोडक्ट है तो कैन प्रोडक्ट के लिए ही वो स्टैंडर्ड्स है एंड एवरी मैन्युफैक्चरर्स दे मस्ट हैव टू फॉलो दैट स्टैंडर्ड्स. And if they are following the standards, definitely the quality of the product will be good and it will not cause any adverse effect on the consumer health if they are consuming. One, because of the production of this quality food, there will not be any dispute among the manufacturer. So that's why it ensuring the fair practice of trade, because it reduces the disputes among the manufacturer, disputes among the country also. Say for example, from India, canned product is tuna canned product is exported to European Union or USA or somewhere, and same canned products produced by other countries. So they must. So if we are exporting to the European Union, so we must have to follow the guideline and standards which we have, which that has been led by the European Union government. We must have to follow. Then only we can export our product to the European Union countries, because we have followed that guidelines and standards which has been led by the European Union government. So like that, if any this country, if we are interested to means export, then we must have to follow their guideline and standards.
So basically two kinds of standard is there, national as well as the international. So national standards, say for example, BIS is there, BS is there, USFDA is there, FSSAI is there. These are the national standard. Whereas the international standards is the international one, that is the Codex Alimentarius Commission, CAC, which has been this FAO, Food and Agriculture Organization, they have framed this Codex Alimentarius Commission, CAC. Then we are having the ISO 9000 series is there. Oh, here it's not ACCP, this will be HACCP. Okay, ASAP. Mistake ho gaya, typing mistake. You may correct HACCP. Okay, HACCP. If they must have to follow the principle of HACCP. Okay, it also comes under the standards. Okay, then other standards is the company specific standards. Besides national standards and international standards, basically two kinds of standards there. But if any manufacturer or if any industry, if any company is producing some product, they are having their own standards. Okay, so that is the company specific standards. अगर हम ही सपोज बहुत ह्यूज क्वांटिटी में अगर हम कुछ प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, तो वी मस्ट हम हमारा कुछ अपना एक स्टैंडर्ड होगा, हमें यही स्टैंडर्ड का हमको वो प्रोडक्ट चाहिए. So that's why that comes under the company specific standards. ठीक है. Then national standard, that is the BIS, Bureau of Indian Standard. Earlier it was known as Indian Standard Institution, ISI. Okay, don't forget. Bureau of Indian Standards, presently it is known as BIS. But earlier the name of BIS was ISI, Indian Standards Institution. Okay. Then British standards is also there. British standards for the this UK के लिए. Then United States के लिए US FDA, United States Foods and Drugs Administration. ठीक है. So these are the national standards. Basically what they are doing, they have bought out standards for the fish and fishery products for local consumption as well as for the export and import. So ये जितने भी हमारे standards हैं, चाहे BIS हो या BS हो या USFDA हो, basically they have formulated different kinds of standards for fish and fishery product, either for domestic market as well as for इंटरनेशनल मार्केट. अगर हम अपने कंट्री से दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट को भेज रहे हैं उसके लिए भी, और अगर हम दूसरी कंट्री से फिश और फिशरी प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में अगर हम मंगाएंगे तो उसके लिए भी उन्होंने स्टैंडर्ड को फॉर्मुलेट किया है. अगर हम बाहर भेज रहे हैं उसके लिए भी, अंदर ले रहे हैं तो उसके लिए भी, और डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी. Then codes of practices are also available relating to hygiene in the retail industry and in handling and transportation of fish, and these are complemented by the British Standard Institution, BS. ठीक है. Codes of practice, that means guidelines. अगर हम fish can product बना रहे हैं तो we must have some guidelines. We are having a flow chart. We must have to follow the step by step flow charts. Then only we can achieve that product which is having a which is hygienically prepared and having a good quality. Then recommendation on cleaning in the fish industry, this is the one standards. Recommendation on cleaning in the fish industry. If we are interested to clean the fish processing industry, then how we can achieve that cleaning process? So for that, standards is there. We must have to follow step by step process for cleaning of fish and fishery products. So this is the British standard 4259 that has been developed in the year 1968. Okay. Then the Food and Drug Administration is engaged in the formulation of processing industry standards.
ठीक है, one is the processing standards and another one in the inspection of imported products. Suppose if any product is coming to our country, okay, so for the inspection means जो checking करते हैं ना, the quality कैसा है, नहीं है, कोई defects तो नहीं है, तो imported product means other country से अपने कंट्री में आ रहा है प्रोडक्ट, उसकी इंस्पेक्शन के लिए they have formulated several standards, processing industrial standards, inspection standards of imported products, and in public health surveillance of processing establishment. Public health significance, that means जो किसी तरह का हमें डिजीज कॉजिंग ना हो, disease occurrence na ho products, public health surveillance. Then in the area of processing standards, the FDA has drawn up guidelines on good manufacturing practices, GMP is the good manufacturing practices for food in general and to fish products in particular. ठीक है, so एक तो है हमारा GMP for food and दो जो है fish products के लिए उसने standards को develop किया है. And fish and fishy product exported to US must meet the requirement of FDA standard. अगर हम fish और fishy product को export करना चाह रहे हैं USA में, then FDA का जो standards है उसको हमें follow करना है, उस standard को हमें मतलब अपनाना है, तभी हम US मार्केट में हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं. Then Indian standard BIS is the national standard organization in the India. In our country, this BIS is there. Its principal objective is to prepare standards on national basis and promote their adoption. मतलब ऑब्जेक्टिव है स्टैंडर्ड को बनाना नेशनल बेसिस पे और उसको प्रमोट करना है एडॉप्शन के लिए. मतलब जितने भी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को वो स्टैंडर्ड को फॉलो करना है और उसके लिए वो मतलब बीआईएस का स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है. अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो उसे हमें प्रमोट करना है. सो फॉर दैट दिस बीआईएस इंस्टीट्यूशन नेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर डूइंग. If any processing industry is there and they are not following these standards, so BIS is engaged and promoting the adoption of processing in this standards. They have brought over 50 standards for various fish and fishery products. 50 standards, that means 50 standards अलग अलग तरीके के जितने भी फिश एंड फिशरी प्रोडक्ट हैं उनके लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स उन्होंने डेवलप किया. एंड अगर उस तरह का प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो वी मस्ट हैव टू फॉलो दैट स्टैंडर्ड. These standards prescribe detailed requirement of processing, packaging, and method of analysis for evaluation of quality of the product. Okay, so processing, packaging, and methods of analysis. These standards. Now coming to the international standards. The main international organization for food standards is the Codex Alimentarius Commission, CAC. Codex Alimentarius Commission, CAC. Aim of this codex is to develop food standard that has to be used worldwide with a view to protect consumer health and ensuring fair trade practice. So ये जो Codex Alimentarius Commission है, basically they are providing a guidelines, they are developing a standards, food standards, and that standards has to be followed by worldwide. Worldwide means entire country, पूरी कंट्री में जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है और जो इंगेज्ड है अपना फूड बिजनेस में, उनको ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, इस गाइडलाइन को फॉलो करना है. Why? If they are following that guideline and standard, definitely that product will be not contaminated. It will protect the consumer health, or there will be no any disputes among the trader जो ट्रेडिंग करते हैं ना प्रोडक्ट का. So there will be not any disputes among the traders.
These standards are used by member countries as a basis to formulate their own standards. So basically इसमें जो है कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन, ये डिटेल में हम पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत सारे कंट्री का मेंबर है और एवरी मेंबर जो है उस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जब कभी भी गाइडलाइन एंड स्टैंडर्ड्स बनते हैं तो वो मेंबर कंट्री जो होते हैं, मेंबर कंट्री उसको एज ए बेसलाइन मानता है और बेस्ड ऑन दैट दे आर फॉर्मुलेटिंग देयर ओन स्टैंडर्ड, ठीक है। नेशनल स्टैंडर्ड होगा, उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को बेसलाइन मान करके अपने नेशनल स्टैंडर्ड को वो डेवलप करता है। सो दैट इज द CAC. Then another international standard is the International Standard Organization, ISO. ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। International Standards Organization, which is located in Geneva, and it is a federation of national standard bodies representing over 127 countries. Basically, it is a federation of national standard bodies जिसमें 127 countries का representation है, 127 countries. So this आज के दिन में ये ISO बहुत पॉपुलर है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा है, आई थिंक स्विट्जरलैंड। Then ISO 9000 series based on BS, British Standard 5750 series, that has been developed in 1987, aiming at providing international quality standard, and the standard only guide the industry to follow certain documentation methodology. So this is the one guideline, ISO 9000 series. This ISO 9000 series basically developed based on the British Standard 5750. Okay, so this is these standards only guide the industry to follow certain documentation methodology. Then another one, HACCP, which has been taken as a standard process control system for assuring food safety by international body. Say for example, Canada, USA, Iceland, European Union, and many other fish producing countries have taken HACCP as a food safety standard. HACCP अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉलो करेगा तो डेफिनेटली हमारा फूड जो है वो हमारा सेफ होगा। अगर कंज्यूमर उसे खाएंगे तो उनको कोई एडवर्स हेल्थ इफेक्ट नहीं होगा। So most of the country, Canada, USA, Iceland, European Union, or other fish producing country, they have taken HACCP as a food safety standard. Then this is all about the standards, okay, national standard and international standard, and we will study in detail. HACCP तो हमने पढ़ा ही डिटेल में, अभी स्टैंडर्ड्स में ये कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन और ISO, ये दो चीज जो है हमें अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नो सर। ठीक है ना? सर हाँ बताओ। हेलो, बोलो। तो 9000 सीरीज और ब्रिटिश सीरीज जो है, हेलो, हाँ बोलो ना, सुन रहे हैं। हाँ सर, वो ISO 9000 सीरीज जो बोले ना सर आप, हाँ। जो बेस हाँ सर, वो क्या होता है सर? सीरीज नहीं समझ में आया था, तो कैसे किया जाता है? ISO 9000 सीरीज जो है वो स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। स्टैंडर्ड्स मतलब सपोज हम कैन प्रोडक्ट बनाएंगे, तो कैन प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमें गुड क्वालिटी कैन प्रोडक्ट बनाना है, तो वी मस्ट हैव टू फॉलो द प्रोसेस रहेगा। स्टैंडर्ड में हमारा सारा प्रोसेस रहेगा, कैसे हमें कैन प्रोडक्ट को बनाना है। कुछ कंटामिनेशन है उसमें लिखा रहेगा, से फॉर एग्जांपल क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, इट शुड बी नील। टॉक्सिन है वो हमारा नील होना चाहिए, कोई हेवी मेटल नहीं है तो वो नील होना चाहिए, कोई कंटामिनेंट्स नहीं होना चाहिए, कोई डिफेक्ट्स नहीं होना चाहिए। सो दैट स्टैंडर्ड्स इज देयर। If we are producing can product,
they must have that quality means जो भी स्टैंडर्ड हमने फॉलो किया, that means क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, स्पोर नहीं होना चाहिए, टॉक्सिन नहीं होना चाहिए, कंटामिनेट्स नहीं होना चाहिए, हैवी मेटल्स नहीं होना चाहिए. सो ये सब चीज कब होगा? जब हम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे. That means if we are following the standard, so that means we are eliminating and removing all these contaminants, and we are focusing to produce good quality product. जो भी माइक्रोब्स हो, पैथोजेनिक माइक्रोब्स है, तो वो भी हमारा इस रिमूव है, हटाना है. अब उसमें ये डिपेंड करता है किस तरह का माइक्रोब्स है. किसी का जो लिमिट होता है स्टैंडर्ड में, कोई 100 होना चाहिए, कोई 0 टॉलरेंस होता है, किसी का 20 नंबर भी होना चाहिए तो एक्सेप्टेबल है, किसी में 50 है या 100 नंबर है तो वो भी एक्सेप्टेबल है. तो इट डिपेंड्स अपॉन द व्हिच काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स इज देयर एंड देयर पैथोजेनिसिटी, वो कितना डेंजरस है. अगर हमारा फूड में हो सकता है कोई टॉक्सिन है तो टॉक्सिन की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए. कुछ टॉक्सिन होती है हीट लेबाइल होती है, कुछ टॉक्सिन होती है हीट स्टेबल होती है. तो हीट लेबाइल वाला है, अगर हीट ट्रीटमेंट हो रहा है मींस परचेज के बाद, अगर हम बिफोर कंजम्पशन इफ वी आर प्रोवाइडिंग हीट ट्रीटमेंट, दैट मींस दैट टॉक्सिन विल बी डिस्ट्रॉयड because it is a heat labile in nature. But if it is heat stable, say for example Staphylococcus enterotoxin, heat stable in nature, अगर एक बार टॉक्सिन फॉर्म होगी तो भाई अब हीट ट्रीटमेंट डालो, डिस्ट्रॉय तो होने वाला नहीं है. So that's why we must have to control. How we can control? By following the standards, by following this guideline. ठीक है. ISO 9000 जो है हमारा स्टैंडर्ड्स है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली इंगेज्ड इन डेवलपिंग द स्टैंडर्ड्स. अगर कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर है या मैन्युफैक्चरर है और वो अपना फूड को इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना चाह रहा है, तो उसको ISO 9000 सीरीज का जो गाइडलाइंस है या स्टैंडर्ड्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है. यस सर. और कुछ है तो पूछ लो. यस. हाँ सर. हेलो. बोलो ना, सुन रहे हैं. सर कोई भी कंट्री जो नेशनल स्टैंडर्ड लगाता है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए सेम ही होता है सर कि डिफरेंट होता है? बीच में आवाज कट गया राजू, फिर से थोड़ा दोहराओ. हाँ सर, मेरा मतलब जो भी कंट्री है, कोई अगर कंट्री है वो नेशनल स्टैंडर्ड्स लगाता है कोई फूड के लिए, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए सेम होता है कि अलग अलग? फिर से आवाज कट गया तुम्हारा. जो भी कंट्री है जो नेशनल स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है, उसके बाद क्या बोली नहीं समझ में आया. जो फॉलो कर रहा है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए सेम फॉलो करता है सर या डिफरेंट? नहीं, एक्सपोर्ट के लिए अलग मतलब करेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट में क्या है, हम जिस कंट्री में भेज रहे हैं उस कंट्री का जो स्टैंडर्ड है, सपोज यूरोपियन यूनियन का जो स्टैंडर्ड है, उसका स्टैंडर्ड को हमको फॉलो करना है, ना कि अपना. अपना तो हम फॉलो कर ही रहे हैं, HACCP हो है, ठीक है, या फिर हमारा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, तो वो हम नेशनल बेसिस पे कर रहे हैं. लेकिन अगर हम जिस कंट्री में हम अपना प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं या एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो हमें उस कंट्री का जो स्टैंडर्ड है, उस कंट्री का स्टैंडर्ड को फॉलो करना है. नहीं तो क्या होगा, जब हम बढ़िया से पैकिंग वुकिंग कर लें, कंसाइनमेंट हमारा रेडी है और उस कंट्री में हम गए हैं, अब हमारा डिलीवरी होने वाला है, तो वो जैसी जेटी आएगा और वो फूड को इंस्पेक्ट करेगा, क्योंकि इफ कोई भी प्रोडक्ट को हम दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बेसिकली रिसीविंग से पहले वो हमारे फूड को सैंपलिंग करता है, एनालिसिस करता है, इंस्पेक्शन करता है, और उसमें कुछ तरह की खामियां अगर उसको मिल गई
तो वो सिंपली हमारा जो भी मतलब कंटेनर है उस कंटेनर को रिजेक्ट कर देगा। अगर एक में भी अगर उसको मिल गया, चाहे वो टॉक्सिन हो या फिर हमारा साल्मोनेला हो, कोई पैथोजेनिक माइक्रोब्स हो या कंटामिनेंट्स हो या हेवी मेटल्स हो या एंटीबायोटिक्स हो, है ना, तो वो जो लिमिट उसका है, जो स्टैंडर्ड है उसमें वो मेंशन है, उसका लिमिट इतना ही होना चाहिए, देयर इज एक्सेप्टेबल लिमिट। इफ इट इज क्रॉसिंग बियॉन्ड दैट, सो डेफिनेटली दे विल रिजेक्ट आवर कंसाइनमेंट। इसीलिए अगर दूसरी कंट्री में हम भेज रहे हैं तो उस कंट्री का हमें स्टैंडर्ड को फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा सारा का सारा कंसाइनमेंट वो कंट्री रिजेक्ट कर देगा, बोलेगा हमको नहीं चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है, जब हमारा जहाज पूरा भरा रहता है श्रिम्प से, फ्रोजन श्रिम्प, और जब वो फाइनल डेस्टिनेशन पे जा रहा है, अराइवल, वहां पे इंस्पेक्शन हो रहा है, तो एकदम टन्स एंड टन्स ऑफ हमारा कंसाइनमेंट जो है रिजेक्ट कर देता है। व्हाई? बिकॉज देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ अनअप्रूव्ड एडिटिव्स हो सकता है, एंटीबायोटिक्स हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ सम टॉक्सिन हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ सम पैथोजेनिक माइक्रोब्स हो सकता है। Because of that, they will reject our consignment. That is one. If we are importing same product, say for example frozen shrimp from other country, so other country का जो है, अगर हमारे country में वो मतलब एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, वो तो एक्सपोर्ट करेगा, हम इंपोर्ट करेंगे, तो उस कंट्री को हमारे कंट्री का उसका स्टैंडर्ड फॉलो करना है। BIS, FSSAI जो है, HACCP जो है, बेसिकली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है हमारा, वो गाइडलाइन को उसको फॉलो करना पड़ेगा, या स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। समझ में आया? सर हाँ, तो सर कुछ भी अगर कोई भी प्रोडक्ट को अगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका तो ये कोई ISO नंबर तो फिक्स होगा ना, कि जो इस जिसका ये पर्टिकुलर ISO नंबर होगा सिर्फ उसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ श्रिम्प, इंडिया के जो श्रिम्प है वो फॉरेन में अभी एक्सपोर्ट उसका बैन हो रखा है। नहीं नंबर नंबर तो नहीं होगा, नेम होता है, प्रोडक्ट का नेम होता है। अगर जो स्टैंडर्ड्स अगर कोई फॉलो कर रहे हैं, उस स्टैंडर्ड्स का वहां पे सिंबल रहेगा, हॉलमार्क। जैसे हम हॉलमार्क सोना खरीदते हैं ना, तो बोलते हैं ना भाई हॉलमार्क वाला हमको चाहिए। सो लाइक दैट, यस सर। if we are exporting our product to some other country, तो डेफिनेटली है वो हमारा कौन सा स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया है, वो हमारा पैकेट के ऊपर में वो हॉलमार्क रहेगा। इंडिया का है तो डेफिनेटली BIS मार्क, हॉलमार्क रहेगा। अगर ISO का वो सीरीज को फॉलो किया है तो ISO 9000 सीरीज, 9000 सीरीज के भी बहुत सारा है, 9001 है, 9002 है, 9005 है, 9003 है, बहुत सारा सीरीज है, और एवरी सीरीज का उसका स्पेसिफिक ये है, मतलब स्टैंडर्ड्स, वो किस चीज में इंगेज्ड है। वो ISO 9000 हमारा नेक्स्ट रहेगा, स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, CAC भी पढ़ेंगे, प्रोडक्ट्स एलिमेंट्रीज कमीशन भी पढ़ेंगे। सर एक चीज और, सर जब हम लोग कॉलेज जब हम लोग का ओपन होगा तो हमें असाइनमेंट्स और प्रैक्टिकल तो सबमिट करने होंगे ना? असाइनमेंट एंड प्रैक्टिकल्स, लेकिन ये यस सर। कॉलेज कब ओपन होता है? सर एग्जाम्स तो हमारे ऑफलाइन ही होंगे, ये तो मतलब कंफर्म हो रखा है कि एग्जाम्स हमारे ऑनलाइन ही कंडक्ट होंगे, मतलब ऑफलाइन कंडक्ट होंगे। तो उस केस में तो सर असाइनमेंट्स और प्रैक्टिकल्स तो होगा ही एक्सटर्नल से पहले। भाई प्रैक्टिकल में तो क्लासेस तो हुई नहीं है ना प्रैक्टिकल की। ये सर प्रैक्टिकल की क्लासेस तो नहीं हुई है, लेकिन सर हर बार जैसे होता है कि हमें प्रैक्टिकल्स लिखने को मिल जाते हैं एंड टाइम में। अभी तो देखो सर अगर हमें नहीं समझ रहे हैं अनवरी, अभी तक का जो हमारा मतलब ऑर्डर है जिसमें हमें यस सर। ऑनलाइन मोड में जो है प्रैक्टिकल का तो क्लासेस का है नहीं, तो अगर नहीं है, अगर ऑनलाइन मोड में एग्जाम होती है तो प्रैक्टिकल का तो मुझे नहीं लग रहा है जो फिर उसका एग्जाम होना चाहिए।
अगर ऑफलाइन में है तो ऑफलाइन में हमें वो असाइनमेंट तो देना पड़ेगा। आई थिंक रिटन फॉर्म में 1 पेज में तुम्हें कोई टॉपिक जो है इस टॉपिक से रिलेटेड, है ना। तो फिलहाल अभी प्रेजेंट में कोई ये ऐसा नहीं है जो एग्जाम कब है या असाइनमेंट कब है, तो हम बता भी नहीं पा रहे हैं जो मीन्स क्या होगा नहीं होगा। अभी फिलहाल ये है, हमें बिकॉज क्लास कंडक्ट करना है, क्लासेस चल रही है। ओके सर। तो आई थिंक तो अभी फिशिंग टेक्नोलॉजी के नोट्स मैंने नहीं दिया है क्या? तो सिर्फ डेक फिटिंग है सर, और आगे का नहीं है। डेट फिटिंग? सिर्फ एक ही टॉपिक का है फिशिंग टेक्नोलॉजी में नोट्स। अरे हमने फिश फाइंडर पढ़ाया है, फिश इक्विपमेंट पढ़ाया है, सोनार पढ़ाया है, इको शाउंडर पढ़ाया है, देन हमने सेलेक्टिविटी इन फिशिंग गियर पढ़ाया है, बाई कैच रिडक्शन डिवाइस पढ़ाया है। सारे नोट्स नहीं है। सर उसका वो पीडीएफ में नहीं सर, उसका नोट्स नहीं आया। वो सारे जो नोट्स आए थे तो सिर्फ डेक इक्विपमेंट बस एक उसी का नोट्स मिला है। अच्छा, फिश फाइंडर ये सब नहीं मिला? नहीं सर, नहीं मिला है। अच्छा ठीक है, मैं भेज देता हूँ। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। आई थिंक हमारा कोर्स जो है वो फर्स्ट कोर्स बाय प्रोडक्ट भी खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी, और माइक्रोबायोलॉजी वाला कोर्स जो है वो भी खत्म हो जाएगा। तो बचेगा केवल ये 2 कोर्स। इस दोनों कोर्स को हम लोग मतलब जो रिमेनिंग 2 खत्म हो रहे हैं उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कंप्लीट करना। ठीक है। गियर भी ज्यादा नहीं है फिशिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें बहुत सारा पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। केवल क्वालिटी एश्योरेंस है, थोड़ा हम पढ़ेंगे। ठीक है। यस सर। और कुछ पूछना है या नहीं तो क्लोज करें? सर हो गया आई थिंक, अब किसी को कुछ नहीं पूछना है। ठीक है, चलो फिर ओके।